You are listening to Sunday with Sonali. Sunday. प्यार देखो हुआ है क्या? आजकल तो जनरेशन कहती है ये वाइब्स है भाई, पर शादी के बाद सब कुछ बदल गया, पुराना कुछ नहीं रहा. This show is all about love, romance, sex, relationship, and sometimes is beyond that. Sunday with Sonali. Sunday with Sonali, season 2. Listening to my podcast series Sunday with Sonali. This series is all about love, romance, sex, relationship, and sometimes it's beyond that. I always encounter with the couples who are in romance, who are in love, and they experience the different emotions within this relationship. Today I have a very, very dearest friend of mine, and I knew this fellow from the long years. Yes, of course, this is a very renowned name from Central India. Sameer Pandit. Sameer Pandit is a founder of a event management company, Siddhi Vinayak Publicity. Well, I know him for different reasons, and these reasons are he brought drama, and especially Marathi drama, musical shows in Central India and made that shows very popular. Sana, as recently she became my friend, and I just loved about her is the toxic management subject, and we once in a get together we were just discussing about the toxic management and other subject, and then when I just get into her personality, I really felt so happy to meet her because she is a behavior trainer and she's a consultant and she has a company, Neutral Emotional Detox Hub. Sounds interesting, I suppose, and she's an author, poet. And the one common thing between them is they are engineers. How they fall in love, how they have completed a journey of their love and romance and the marriage. Hi Sana, hi Sameer, welcome to my show Sunday with Sonali. Sana, अब बात नहीं करते, मैं थोड़ा कम बात करते हैं. तो मतलब कैसे मिले थे और कैसे पटाया था, किसने किसको पटाया था? Who proposed whom first? You take the initiative, narrate the things. प्रपोज मैंने किया था. एज था और इनकी फर्स्ट ईयर बैच थी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन की कॉलेज में, और बहुत रिजर्व्ड और किसी से ज़्यादा बात नहीं, और एक इंटेलिजेंट लड़की मुझे लगी. और फिर मैंने इससे बात की पहली बार, और वेवलेंथ फिर मैच हुई कुछ महीनों बाद, और फिर मुझे लगा कि मैंने हमेशा के लिए इनसे बात कर लेनी चाहिए अभी से. हाँ, क्योंकि ये टेक्सटाइल में थे एंड इट वाज हिज लास्ट ईयर स्टडीज. टेक्सटाइल में लास्ट ईयर ट्रेनिंग का होता है, तो ट्रेनिंग मॉडल मिल में थी, टू कम वंस अ वीक. और मजे की बात ये थी कि मेरे सारे मामा मामी, मेरे रिश्तेदार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में स्टाफ या टीचर्स थे. Okay. तो समीर thought it is better to have decide future. तो वैसी बात हुई कि सबको पता था हमारे कॉलेज में कि समीर ने अभी शादी का ही पूछ लिया है. क्या बात है, डायरेक्टली तो प्रपोज मतलब जब किया कि how he proposed, do you remember if I take you in the lane of the memory? It was you can say he created a contradiction. I was actually not so much talking. Reserved नहीं थी, but मैं अपने में मेरी एक 2-4 फ्रेंड्स थी, हम लोग उसी में खुश थे. So we were like that. And एक होता है ना कि मेरी मामी रजिस्ट्रार थी, तो होता है कि वो एक अपने इसमें होता है कि no, I have to behave, I should possess good conduct in premises where my relatives are holding a position. तो वो एक था. हम लोग ये नहीं, हमारे वो इलेक्शंस होते थे तब, CR या SR क्या कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव क्या होते थे. ये मुझे बोलते हैं कि तुम्हें वो कंटेस्ट करना चाहिए, तुम्हें वो स्पार्क है. क्या बात है, he was inspiring from then. He was inspiring me, but that inspiration was just to have a talk. And when we were easy in talks, okay, then he said कि you should not go for that. देखो कॉलेज में ना बहुत सारा क्राउड रहता है, बट बहुत सारे लोग भी आपको अप्रोच करते हैं, लेकिन आपका उनका इंस्पायर करना आपको बहुत पसंद आ गया या फिर दिल को भाया, ये कब आपने रियलाइज किया यार ही इज द बॉय नेक्स्ट डोर? वो होता है ना कि हमें क्योंकि ऐसा कुछ इलेक्शन या ये कंटेस्ट करने का हम लोग कभी सोचते ही नहीं है. I was in first year. मैं वो स्कूलिंग छोड़ के मैं आई थी कॉलेज में. तो कोई बोल देता है कि हाँ तुम्हें वो स्पार्क है, तुम कर सकती हो, तो हम लोग नेचुरली उससे ना ये हो जाते हैं वो बात से, not with the person but with the story और but with the approach. तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैं सच में कर सकती हूँ. And it went like that. And when we were okay with each other कि हाँ बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से,
ऐसा तब भी कुछ नहीं था कि हाँ बहुत ऐसे देख रहे इधर उधर से कोंटे से, ऐसा कुछ नहीं, बट बात होती थी एंड एज ही सेड बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात होती थी एंड वन फाइन डे ही सेड कि नहीं वो मत करो, वो सब बाद में बड़ा ये होता है। स्टोरी पूरी रिवर्स हो चुकी थी बट आई लाइक द मैन, आई थॉट इट वाज एंड ही वाज known by पिन का पैकेट। पिन का? What is that? He will tell the story. What is that, सविता? हाँ, मतलब मेरा ये था कि दुपट्टा भी लिया है अगर तो प्रॉपर उसको पिन अप होना चाहिए। वो पिन का पैकेट मेरे पास रहता था, मैं जो कभी कभी इनको देता भी था कि यार कैसे, how will I say no to this man? वो पिन का पैकेट मेरे लिए लेके घूम रहा है कॉलेज में and everyone amongst my friends used to call him Sana, pin ka packet. And yeah, Sana name he has given me in college before my marriage. Because Okay. हम लोग कॉलेज में भी ज्यादा नहीं मिले। मैं I used to So what is your real name? Jyotsna. Oh, Yes. well, quite a beautiful name, सना। हाँ यार। तो ये सना के पीछे की कहानी क्या है? बेसिकली इसके नाम का उच्चार जो था वो कई लोगों को जमता नहीं था। अच्छा। स्पेल में भी गड़बड़ कर देते थे। सो इसीलिए मैंने उसको एक शॉर्ट फॉर्म सना कर दिया। How beautiful! He was having like every means like he was very, I cannot say possessive. What will be the right word to say? He was very caring in a way, or what say? नहीं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि आपके नाम के लिए कि कोई आपका नाम प्रोनाउंसिएशन गलत ना करे, आपका दुपट्टा सही रहे, पिन का पैकेट लेकर घूमे, एवरीथिंग ही वाज टेकिंग केयर ऑफ, राइट? तो ही वाज हैविंग हिज ओन अप्रोच टुवर्ड्स यू। यस, अच्छा उसमें ऐसा भी नहीं था कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी नहीं। there was no moral policing even if he is taking pin का पैकेट for me, but ऐसा moral policing नहीं था कि पिक्चर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, पिकनिक को नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं था। He passed was a concern and love. हाँ, it was concern actually. Right, the right word is was a concern for you. Concern. ये कंसर्न कितने साल हुए शादी को अभी? अभी भी है, अभी भी मेरे घर में आपको 24 घंटे फूल मिलेंगे because he knows I like flowers, real flowers. Oh, lovely. 26 years हो गए। 26 years. See, my show got the listenership in 7 countries in the last season. और 7 कंट्रीज में मुझे जो लिसनर्स ये हो रहे हैं उनको बड़ा सरप्राइजिंग, बिकॉज फॉरेनर लिसनर्स ज़्यादा है तो उनको बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट ये रहता है कि इंडियन मैरिजेस कैसे सर्वाइव करती हैं और इतने साल। What is the funda? What is the reason? What is the beautiful thing that Indian marriages survives for long years और वो companionship जो है वो बरकरार रहती है? विजन I don't know, but मेरा विजन अभी ऐसा है, ups and downs तो होते हैं, we are human beings, और अपनी एक natural inclination भी होता है, instinct भी होते हैं और आदतें भी होती है। शादी में पढ़ने से पहले हम लोग अपने यहाँ घर में होते हैं, मायके में, तो हमारी भी कुछ आदतें होती है। बट द ग्रेटेस्ट थिंग इज इंडियन मैरिजेस की कि उन्हें पता होता है, वी हैव लेगेसी ऑफ फैमिली कल्चर, तो उसमें पता रहता है कि ठीक है 2-4 मिनट झगड़ा कर लिए, एक आध दिन बात बंद कर दी, तो दूसरे दिन तो बात होनी ही है, तो वो एक होता है। और विमेन, हम लोग आज तक कहते आए हैं कि विमेन अपना घर छोड़ के आती है, पर दूसरी बात ये है कि आदमी लोग और उनके घर यानी जो पुरखे हैं, इमीडिएट जो पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो कमा धमाते हैं, तो वो भी तैयार हो जाते हैं इन चीजों के लिए। प्रैक्टिकलिटी की तरफ हम लोग देखते हैं ना मैरिजेस की, तो कभी कभी लगता है कि बाप रे, यानी आजकल की लड़कियां जब डिमांडिंग रहती है, लड़के डिमांडिंग रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि जो कमाते हैं, समीर के फादर ने कुछ तो कमाया होगा जो समीर को उन्होंने ऐसे बनाया, तो दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, योर इमोशंस, तो वो भी एक आदमी भी करते हैं। So that's a beautiful thought. I think here your role of a consultant, your role of a behavior trainer comes into that. And you see the society, because ये जो चीज़ है कि नहीं, लड़कियाँ, इंडिया में बोला जाता है लड़की सबको छोड़ के आती है, लेकिन लड़के की लाइफस्टाइल भी है जो आफ्टर मैरिज काफ़ी चेंज होती है। So I mean, what changes you encounter वो और आपने देखे हैं शादी के बाद में जो जनरली? बेसिकली इसने बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट की चीज़ें जो मेरे यहाँ का कल्चर था, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरी 10 बातें सुने, तो उसकी 5 बातें सुनना मेरे लिए भी उतना ही लाजमी है। अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉपर रहा, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट प्रॉपर रहा, तो मैरिजेस टिकते हैं, वो अच्छे से सक्सेसफुल भी होते हैं। क्या बात है।
लव एंड रोमांस, इन दोनों चीज़ों को कैसे, बिकॉज टिकना एक अलग बात है, रोमांस को एकदम ताज़ा तरोताज़ा रखना, उसके लिए आप क्या करते हैं स्पेशली? छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे उसने कहा कि फ्लावर्स पसंद है, फ्लावर्स आते ही रहते हैं कोई ना कोई ओकेजन के बहाने, या कोई ओकेजन नहीं रहा तब भी आते ही रहते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल उसको बर्ड वॉचिंग पसंद है, ओके, तो सीजन में बर्ड वॉचिंग के लिए चले गए। जो चीज़ें उसको, जिससे उसको छोटी छोटी खुशियाँ मिल सकती है, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश। क्या बात है। आई थिंक दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अ रोमांस। व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ रोमांस फॉर यू, सना? तो लगता है कि आप रोमांस कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा गलत ये है अपना एक परसेप्शन कि हाँ बहुत इंटीमेट है या कैंडल लाइट है एंड फिर ऐसे दिली बातें कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज वो एक होता है ना, एक शैलोनेस भी होता है, तो वो रोमांस है, शायद उसकी डेफिनेशन उतनी है। पर अभी जैसे समीर ने कहा है कि हाँ बर्ड वॉचिंग, सो वी गो विद द नेचर फ्रॉम वेयर वी आर इमिनेट। तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है कि आप ऐसी जगह साथ में हो जो इटर्नल है, क्योंकि ये चीजें हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ ले जाने की, यानी क्योंकि मैरिज इज हाउस होल्ड कोर इवन, तो हाउस होल्ड कोर से अगर आप मुझे कहीं बाहर ले जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पर सब ऐसी सैंक्टिटी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी देख लो नजर उठा के, तो रात में देखो तारे नजर आएंगे, दिन में देखो सूरज है, तो मुझे ऐसा सब अच्छा लगता है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोमांस। तो आप समीर के लिए क्या करते हैं, और वो जो उनको पसंद है, विच आर द दोज थिंग्स? अब वो तो समीर अच्छे से बताएगा, पर मुझे ऐसे लगता है कि हर लड़के को ऐसे लगता है कि मेरे माँ बाप, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनसे कुछ ना कुछ तो लिया ही होता है। आज हम लोग जब बात करते हैं कि लड़कियों का भी समान अधिकार है ससुराल के इसमें, तो वो कमाया धमाया होता है ना, तो हर लड़के के, आप कितने भी आगे चले जाओ, माँ बाप कितने भी बोले कि हाँ आप अलग रहो आपके संसार में, तो भी अभी तक तो ऐसा है कि हर लड़के को लगता है कि मेरे माँ बाप भी मेरे सामने रहे, बिल्कुल उनका अच्छे से हो। क्योंकि एक एज के बाद क्या होता है ना, 40-45 के बाद अपनी फिजिकल ये एबिलिटीज कम हो जाती है, कैल्शियम लॉस, ये वो बहुत चीजें उनकी भी करने की रही होती है। दे लुक फॉरवर्ड टू देयर चिल्ड्रन, यानी टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली इज ओनली द ओनली, यस यस, तो वो मुझे 10 गुना माफ कर दे। आई नो दिस। क्या बात है, आपको पता चल गया कि किल्ली कहाँ है। And that is beautiful thing. If your family, if it keeps your family happy, of your beloved person, then he himself means a happy man. और आगे मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश रहना होता है। लेकिन मुझे बताओ कि लाइफ इतनी जितनी हम सोचते हैं उतनी ब्यूटीफुल होती नहीं, चैलेंजेस तो उसमें होते ही है। व्हाट आर द चैलेंजेस यू, इफ मींस दिस इज 26 years ऑफ स्टोरी, राइट? एक जर्नी है 26 years की, हर चीज़ हर दिन संडे नहीं होता है ना, कोई मंडे आ जाता है वेयर यू नीड मोटिवेशन। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, वो चैलेंजेस के बारे में बात अगर करूँ तो विच आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन द रिलेशनशिप में चैलेंजेस नहीं कह सकते, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे रिलेशन मतलब रिलेटिव्स जो होते हैं, कभी उनकी तबीयत खराब होती है, कभी किसी की डेथ हो जाती है इलनेस के कारण, उस समय जो भी इमोशनली इनको संभालना है या इनके घर वालों को संभालना है, या मेरे कुछ रिश्तेदार जैसे मेरे माय मॉम एंड डैड, आई लॉस्ट देम आई एम सॉरी विदिन 6 months दोनों गए। तो ये सब चैलेंजेस ही है। बाकी तो डे टू डे लाइफ में बिजनेस में जो आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारे टाइमिंग होते हैं और ये सारे सॉर्ट आउट वहीं के वहीं हो भी जाते हैं, तो वो घर तक लाने की चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये जो फैमिली से रिलेटेड जो रिश्तेदार या जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं, उनको अगर कुछ ये हो जाता है, क्योंकि हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं उन लोगों से, तो वही कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं जो हम दोनों ने अच्छे से अब तक तो निभाए हुए हैं। क्या बात। लेकिन मुझे पता है, आप जब आपने शादी करी तो मतलब बड़े यंग एज में ही शादी करी होगी। बहुत। हाँ? I was merely 20. Oh my God, बाली ऑलमोस्ट। तो क्या आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो चुके थे उस वक्त? यस, मैं इंडोरामा सिंथेटिक्स में सर्विस करता था, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर। ओके। सर्विस करता था और मेरे घर में सभी सर्विस करते थे, मतलब पेरेंट्स का भी उतना ही सपोर्ट था, फाइनेंशियली भी, क्योंकि तब इतनी पगार नहीं होती थी कि तब आप ये करो। माय फादर वाज वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मेरी मम्मी भी लेक्चरर थी, 4 ही लोग रहते थे, तो वो इजीली। लेकिन फिर अचानक से आपने ऐसा मतलब जॉब छोड़ दी, उसके बाद में आपने सोचा कि आप
नागपुर में, सेंट्रल इंडिया में एक ड्रामा, मराठी नाटक का कल्चर लेकर आएंगे, उसे कल्चर को, मुझे लगता है वो जर्नी आप भले अभी बता नहीं रहे, बट आई थिंक दैट वाज वेरी हार्ड जर्नी, वेरी बिग स्ट्रगल। अभी क्योंकि बड़ा सॉफ्ट लगता है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि आपने वो अचीव कर लिया, समय निकल गया है। बट इफ आई टेक यू इन दैट इन योर पास्ट, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रगल, बिकॉज उस वक्त आपका साथ भी इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि वो सपोर्ट, वो जज्बा जगाए रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। सो व्हाट वाज दैट टाइम? मैंने बेसिकली जब इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट की और धीरे धीरे एज ए ड्रामा डिस्ट्रीब्यूटर करके काम स्टार्ट किया, मैंने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ड्रामा देखा था। अच्छा। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, वो भी हम लोग आधे में से घर चले गए क्योंकि हमारा बच्चा रो रहा था घर पे, आधे ही देखा था, इंटरवल में से हम लोग घर चले गए थे। अच्छा। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा कि ट्रबल्स आई, पार्टनरशिप भी हम लोग कर देते थे, पार्टनर्स भाग जाते थे, लॉस आया तो सारा लॉस मैं बेयर कर रहा हूँ, प्रॉफिट आया तो सारे के सारे आ जाते थे, हमने किया करके। तो ये दौर करीब 2-3 साल तक चला और 2005 से अब तक फिर हमने सारे बंद कर दिए, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं, कुछ नहीं, जो भी कर रहे हैं आज हम लोग हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, हमारे भरोसे पे हम लोग करते हैं। तो तब से अब तक का कम ज़्यादा अभी कैसा एक अंदाज में आ जाता है, कुछ सालों के बाद आपको एक अंदाज आ जाता है कि कैलकुलेटेड रिस्क किसे हम लोग कह सकते हैं और हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए ये जिसको समझ में आ गया वो बिजनेस कर सकता है। क्या बात है, वेल सेड। उस वक्त आपकी भूमिका क्या थी? व्हाट वाज योर रोल? हाउ वाज लाइक दैट टाइम, दैट डिड यू सपोर्ट हिम एंड डिड यू लाइक फाइंड चैलेंजेस इन लाइक, होता है जनरली उस वक्त फ्रिक्शंस भी आते हैं, बहुत आते हैं, क्योंकि अभी समीर ने कहा जैसे कि इसके पेरेंट्स भी सर्विस इंडस्ट्री में थे, सर्विस इंडस्ट्री यानी SBI में, मेरे पेरेंट्स भी, मेरे पापा मेयो हॉस्पिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो जो सर्विस पेशा लोग होते हैं ना, नौकरीशुदा, तो उनके लिए ना बिजनेस में मेरा बच्चा जा रहा है या मेरा जवाई जा रहा है, वो एक्सेप्ट करना ही अनसर्टेन लगता है उनको, क्योंकि उनको वो महीने के आखिरी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं लगती उनको। तो उनका ऐसा था कि ये गलत हो रहा है, एकदम सीधा था, कुछ फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, वो गलत हो रहा है स्टेटमेंट। हाँ, और तुझे उसको रोकना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो रोकने की जिम्मेदारी भी मेरे पे थी, सबके तरफ से। हाँ, मतलब इन-लॉज की तरफ से भी और अपने पेरेंट्स की तरफ से भी। हाँ, पर कहीं पता है क्या, अगर मैं लॉजिकल यानी इवैल्यूएशन करूँ या जो अवेलेबल जितना ये था उस पर रिसोर्सेस, हाँ, तो मैं भी कर सकती थी कि नहीं तूने नहीं करना चाहिए। ही इज वेरी मच एजुकेटेड। समीर हैज 5 डिग्रीज और 4 डिप्लोमास। यस, ही इज सो मच एजुकेटेड। तो मुझे कहीं ना कहीं शायद वो एक इनर फीलिंग होती है ना, जो हम लोग बिना सोचे एक फील आता है कि मैं अगर लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करूँ तो मैंने भी मना ही करना था। बट यू बिलीव्ड इन मैजिक। हाँ, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हमको तो 2 बच्चे थे जब समीर ने जॉब छोड़ा और बिजनेस में आए। तो बोलने वाले यानी किस लिमिट तक बोल सकते हैं, ये हमने तभी समझ लिया था कि आपको क्या सुनना पड़ सकता है। तो तब ऐसा था, और हम ना एक एज में होते हैं जो हमको पता रहता है कि हाँ हम तो कर पाएंगे, थोड़ा सा इल्यूजन में रहते हैं, थोड़ा सा होप्स में रहते हैं और बहुत ज्यादा कमिटमेंट में रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि समीर ने उस वक्त स्विच की, उसके बाद we were too young। मैंने तो बोला 20 साल में, मैं 20, समीर 25 में हमने शादी कर ली। So we were ready to fight। मुझे अच्छा लगा था। लवली। अब जब आप देखते हैं कि आपके पास में इतने सारे लोग आते हैं बिहेवियर ट्रेनिंग के इसमें या टॉक्सिक मैनेजमेंट के लिए, क्या लगता है आपको कि रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं करती? ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जल्दी। हाँ, हम लोग ना इसमें रहने लगे हैं, पर्सनल फ्रीडम में बहुत ज़्यादा। जितना हम लोग पढ़े और उसके बाद हर कोई एक बड़ा सा वर्ड यूज करते हैं और वो उस वर्ड का बिल्कुल मीनिंग नहीं जानते। इंस्टीट्यूशनल right of freedom। Okay। But a great thinker has said, great freedom comes with a great responsibility। और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ना शायद थोड़ी सी दूर हो चुकी। तो वो एक फैक्टर रहता है जब चेंजेस होते हैं ना समाज में, तो वो एक फैक्टर बड़ा रहता है कि हम सबको आगे जाना होता है। बट मुझे लगता है साथ जाना इम्पोर्टेंट है। साथ जाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब अवार्ड लाते हो ना, तो वो पैट करने के लिए, आपकी खुशी में आने के लिए कोई तो भी चाहिए रहते हैं। बट बीच में ऐसे हो गया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट उसके बाद किसी की, इफ यू आर एजुकेटेड देन यू डोंट नीड एनी सपोर्ट इन योर लाइफ।
ऐसा जो हो रहा था ना इतने सालों से, वो और पर्सनल फ्रीडम को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर मिल गया, सबको ऐसे लग रहा है। मुझे तो सबका एक दायरा है ना? हाँ, Limits और दायरा, हाँ, दायरे की बातें नहीं हो रही, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें नहीं हो रही, ड्यूटीज की बातें नहीं हो रही, फ्रीडम की बातें हो रही है, बट Freedom ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें नहीं नहीं हो हो रही। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालते हैं, कौन क्या करता है? और लॉकडाउन में तो काफी कुछ हुआ मुझे होगा। बहुत मजा आएगा ये बताते प्लीज। लॉकडाउन में नहीं, मैंने समीर से घर के काम नहीं करवाए। नहीं करवाए? ग्रेट। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता वो कि मेरे एरिया में कोई आए। अच्छा। या बट माय बोथ चिल्ड्रन दे डू अ लॉट। बड़े बेटे को बहुत अच्छा लगता है खाना वाना बनाना, इट्स अ वेरी गुड शेफ। यू कम समडे। I will be happy to. बट मेरे घर में ग्रोसरी भाजी सब समीर लाता है। क्या बात है। एंड द थिंग इज कि जिस दिन किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे यार, बोले तेरे यहाँ की भिंडी की सब्जी बड़ी अच्छी रहती है, हयास समीर की भिंडी नहीं लाई अपने यहाँ। somebody was saying कि 30 रुपए पाव हो गई है। मुझे एक्चुअली सब्जी दाल आटा सब्जी का कोई भाव पता नहीं है सोनाली। आई प्राउडली ये शादी के पहले करते थे समीर आप? आई डोंट नो, सब्जी लाना हो गया पहले से करता है। मैंने अभी तक नहीं लाई हूँ। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। मैंने तो ये भी कहा समीर से कि जब तुम पूर्ति उर्ति जैसे यहाँ जाते हो खरीदने, तो लोग सोचते होंगे कि बेचारा यही आता है हमेशा। ये तो दिखती ही नहीं है। बट आई एंजॉय दैट। द लेटेस्ट में अभी कौन सा गिफ्ट मिला है आप दोनों को एक दूसरे से? कुछ भी नहीं दिया अभी। गिफ्ट मैटर करते हैं? गिफ्ट मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने इसको एक पर्स दिया है। ओहो, एक पर्स दिया, एक ड्रेस दिया, बहुत कुछ दिया। अभी याद आ रहा है ना? अभी याद नहीं आ रहा था। नहीं, मैंने नहीं दिया। अच्छा, आपने? मैंने नहीं दिया। बट यस, वी लव टू गो टू जंगल्स। हम हर साल 31st भी बाहर मनाते हैं। बाहर यानी नॉट इन अ पार्टी, ऐसा कहीं नहीं, बट ऐसे समुंदर या जंगल, ऐसी जगह जब मैंने कहा ना कि मेरे लिए रोमांस वो है कि ये इटर्नल चीजें जो मेरे साथ एंजॉय कर रहा है, वी ब्रीथ इन इटर्निटी ना, वी ब्रीथ टुगेदर, राइट। तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो बस कोविड से हम लोगों का बंद हुआ, नहीं तो 19 हम पौंडीचेरी, हाँ, सनराइज सबसे अर्ली होता है इंडिया का। क्या बात है, ब्यूटीफुल। मुझे बताओ, गाने का शौक किसको है? क्या गुनगुनाना चाहेंगे इफ यू वांट टू सिंग फॉर अ सॉन्ग? उसका एक फेवरेट गाना है, देवानंद साहब की मूवी है प्रेम पुजारी। हम लोग, मैं जितने भी शोज ऑर्गेनाइज किए अब तक किशोर कुमार के, बेसिकली उसमें वो गाना होता ही है। उसी की 4 लाइन में गा सकते। प्लीज। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, हर पल मुझे तू बुलाती, पानी ने रोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन दुनिया सबसे किनारा, ओ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। Lovely, beautiful. I think I just wanted to tell my listeners जो देख नहीं पा रहे थे कि स्टूडियो में क्या हो रहा था, तो मैं एक कोऑर्डिनेशन, एक अच्छी कंपेनियनशिप का आपको एग्जांपल देना चाहती थी। बिकॉज यू नो, इन बिटवीन समीर लिरिक्स भूल गए आई थिंक, एंड सना वाज लाइक, यू नो, ट्राइंग टू टेल हिम द लिरिक्स। और यही ब्यूटी है आई थिंक कंपेनियनशिप से, जब आप गलत हो रहे हो तो आपको बिल्कुल हल्का सा साथ दिया जाए, हाथ दिया जाए, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ अ कंपेनियनशिप। आई थिंक यू आर द बेस्ट कपल एंड गॉड ब्लेस यू विथ मेनी सच ब्यूटिफुल ईयर्स टुगेदर। और ये जो खूबसूरती है आपके रिश्ते की, वो बरकरार रहे, ऐसे मैं दुआ करती हूँ भगवान से। एंड आई जस्ट टेल माई लिसनर्स दैट प्लीज शो योर लव ऑन दिस शो। संडे विद सोनाली इज गेटिंग ह्यूज लिसनरशिप फ्रॉम different parts of the world. Please keep showering that. And Sunday with Sonali is all about love, romance, sex, relationships, and sometimes it's beyond that. Today in the Beyond That, my couple is telling about the family values is important. That is very important because, you know,
जब आप एक इंडिया में कहावत है कि शादी जो करते हैं सिर्फ एक दूसरे से नहीं होती, पारिवारिक दो परिवारों की शादी होती है और आपको एक दूसरे के साथ में दो परिवारों को लेकर चलना होता है. आई थिंक दिस इज द की ऑफ द सीक्रेट ऑफ दिस गुड रिलेशनशिप. You keep exploring your good relationship. Thank you so very much for listening to the show. See you then. Keep listening Sunday with Sonali. Thank you, Sana. Thank you, Sameer. Thank you so Thank much. you.